Now discuss about the principle of superposition or superposition principle. According to principle of superposition, if two or more than two waves overlap to each other, we get a resultant wave, and the displacement of the resultant wave is equal to vector sum of displacements of individual waves. That's the principle of superposition. Listen again. When two or more than two waves are overlapped to each other, we get a resultant wave. The displacement of the resultant wave is equals to vector sum of displacements of individual waves. Is the principle of superposition. Okay, and y equals to y1 plus y2 and so on. Is the principle of superposition. Similarly, in case of amplitude also, and superposition are of two types: constructive superposition and destructive superposition. So first we discuss about the constructive superposition. Constructive superposition. If waves overlap to each other in same phase, means crust with crust, trough with trough. If waves overlap to each other in same phase, we get constructive superposition. Is the one way. It is another way. These are two waves and they overlap to each other in same phase. Crust with crust, trough with trough. Result, amplitude will increase. Is the resultant amplitude. Amplitude will increase, intensity will increase, energy will increase. So it is called constructive. So here A equals to A1 plus A2 or A equals to A1 plus A2. ठीक, डायरेक्ट ऐड हो गए. सेम फेज में है तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 2A1 के बराबर हो जाएंगे या 2A2 के बराबर हो जाएंगे. एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, intensity will increase, energy will increase. So it's about the constructive superposition. Now the second one is destructive superposition. Destructive superposition. If the waves overlap to each other in opposite phase, means crust of one wave overlap with trough of another wave and so on. Such type of superposition known as destructive superposition. क्रस्ट और ये ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, ये अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. इज द रिजल्टेंट वेव. एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा और यहां प्लस हो रहा था यहां पर माइनस हो जाएगा. एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज, intensity will decrease, energy will decrease. That's why it is called destructive superposition.
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये दो तरह के होते हैं। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव से, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से तीन चीजें मिला करती हैं। 3, फर्स्ट स्टैंडिंग वेव्स, पहला स्टैंडिंग वेव मिलेगी। सेकंड बीट्स, और थर्ड इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की तीन एप्लीकेशन है, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स, सेकंड बीट्स, और थर्ड है इंटरफेरेंस। ये दो तो हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स। और यहां पर हम लोग थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस। क्लियर? तो हम लोग इंटरफेरेंस लेके चल रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की थर्ड एप्लीकेशन। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मतलब जानो इसका, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस जानो क्या होते हैं, वो पहले उनको जानो, उसके बाद इस पे आते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। The sources of light is said to be coherent if they emit the light of same wavelength, same frequency, having zero or constant phase difference. The sources are said to be coherent if they emit the light of same wavelength, same frequency, having zero or constant phase difference, known as coherent sources of light. Two independent sources never be coherent. Two independent sources never be coherent. Like if you are having two identical bulbs, same rating, same company, मान लो आपने दो LED बल्ब लिए, ठीक है, और आपने फिलिप्स के ले लिए, दोनों 10-10 वॉट के, पावर सेम है, वोल्टेज सेम है, कंपनी सेम है, लेकिन एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, दोनों एक साथ ऑन करो, इसके बावजूद भी इनसे जो लाइट मिलेगी वो कोहेरेंट नहीं होगी। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो गई, क्योंकि जो तीसरी कंडीशन है ना, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये मिलना मुश्किल हो जाता है। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज नेवर बी कोहेरेंट। अब कोहेरेंट सोर्सेज निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें एक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE कहलाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा है फ्रेजनल बाइप्रिज्म, एक है लॉयड मिरर। इन तरीके से आप कोहेरेंट सोर्सेज निकाल सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में है YDSE, ओनली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करेंगे और फिर उसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि बाकी की दो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे emit the light of same wavelength, same frequency, having zero or constant phase difference.
तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है जानो. द फिनोमेना ऑफ a redistribution of energy, the phenomena of redistribution of energy on account of superposition of two coherent sources known as interference of waves. The phenomena of a redistribution of energy on account of superposition of two coherent sources known as interference of waves. मतलब इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कंजर्व रहती है, केवल रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. जैसे कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एनर्जी बढ़ जाया करती थी तो डिस्ट्रक्टिव में घट जाया करती थी. कुल मिला के एनर्जी कंजर्व रहेगी. एक में बढ़ गई तो एक में घट गई. तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज नॉन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट लेके चल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं आपको. YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेके चल रहे हैं. यंग्स ने क्या किया, एक सोर्स लिया और उसकी हेल्प से कॉरेंट सोर्सेज निकाले विद द हेल्प ऑफ टू नैरो स्लिट्स. ठीक है, जानो कैसे. इट्स द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. क्रस्ट ट्रफ. ये सोर्स था, क्रस्ट और ट्रफ में चल रही है. Here we take two narrow slits, S1 and S2. These are the two narrow slits, and according to Huygens principle, they also behave as a source of secondary wavelets. Okay, they behave as a source of secondary wavelets. यहाँ से भी waves निकलना start हो जाएंगी. ठीक. पहले क्रस्ट क्रस्ट, फिर ट्रफ एंड ट्रफ, फिर रेडियस बढ़ा दिया. अब क्या आएगा, क्रस्ट आएगा. इसका भी क्रस्ट आएगा. ठीक है. और इस तरह ये बनती चली जाएंगी. ऐसे ऐसे आप आर्क बढ़ाते चले जाओगे, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी. ये स्क्रीन है. तो अब देखो कि सेंटर पर, जो स्क्रीन का सेंटर है, यहां पर आप देखो तो क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है. इसका मतलब यहां क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया. इफ द वेव्स ओवरलैप इन सेम फेज वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस.
क्रस्ट विद क्रस्ट, ट्रफ विद ट्रफ, तो इसलिए सेंटर पे क्या मिल गया, कंस्ट्रक्टिव। उसके बाद देखो आप, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मिल गया, डिस्ट्रक्टिव मिल गया। अगेन देखो, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। सो व्हाट द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला, एट द सेंटर वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ऑल्टरनेट वी गेट destructive and constructive interference on both sides of the center. तो ये था demonstration of interference of waves by Young's double slit experiment. और Young's double slit experiment क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, and two independent sources never be coherent. तो कोहेरेंट के लिए हमें लेना पड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। मैंने आपको बताया कि 2-3 तरीके और भी होते हैं, लॉयड मिरर है, फ्रेजनल बाई प्रिज्म है, उसकी हेल्प से भी हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने उनको डिस्कस नहीं किया। सिलेबस में है YDSE। ये तो केवल एक एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन है, यही चीज़ हमें कि सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा एंड ऑल्टरनेट वी गेट डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, हमें मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, और वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो इंटरफेरेंस क्या था? द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। और कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? द सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट द लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस नेवर बी कोहेरेंट। जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते कभी कोहेरेंट नहीं हुआ करते। एक बार बोर्ड में आ चुका है, there are two bulbs 100 watt 220 volt, ठीक है, and they emit the light at the same time, will they behave as a coherent sources? तो आपको लिखना था no, because these are independent sources, और independent sources never be coherent। तो इसलिए हमें कोहेरेंट बनाने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेना पड़ा। तो इंटरफेरेंस लेके चलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करते हैं ये। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तो हमें सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना था कि सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा एंड ऑल्टरनेट वी गेट डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। हमें ये प्रूव करना था, यहाँ पर शो करना था, नॉट प्रूव, शो करना था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन है ये। लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मैथमेटिकल फॉर्मेट है, एनालिटिकल मेथड है, कंडीशंस कहते हैं उसको, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन YDSE। तो वो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग उसको अगली वीडियो में लेके चलेंगे।